Good morning, students. Our next topic in the second unit is mineral resources, its uses and exploitation. The economic development of a country depends to a great extent on its natural resources, and mineral resources are one of them. On the availability of minerals got as ores from the earth by माइनिंग कोल्स ओर्स जो होते हैं ये मिनरल रिसोर्सेज होते हैं. इन ओर्स की मेटलर्जी करके इनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, iron and other metals. These metals are extracted from the mineral ores. Okay, so coal and iron are the basic minerals which man needs to develop iron and steel industry. Minerals like mica, copper, lead and zinc are of vast economic importance. Thorium and uranium are of एटॉमिक रेलिवेंस. ऐसे आपको पता होगा कि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये सब जो है इनसे एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह क्रिएट होते हैं. पोजीशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. इंडिया इज रिच एंडोड विथ मिनरल्स लाइक कोल, बॉक्साइट, बैरेट्स, आयरन, माइका, जिप्सम, क्रोमाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, while it is deficient in minerals like asbestos, phosphate, lead, tungsten, tin, platinum, group of metals, gold and diamond. तो इंडिया में मिनरल जो है आयरन और ये जिप्सम, क्रोमाइट ये सब ज़्यादा हैं, और जो कुछ और वैल्यूएबल मिनरल्स हैं लाइक गोल्ड, डायमंड, मेटल्स ये सब, प्लेटिनम वगैरह, टंगस्टन वगैरह, इन सब की कमी है. नीड फॉर एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी. तो मिनरल्स को रिजर्व करने के लिए, उनको डेवलप करने की, प्रोटेक्ट करने के लिए देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिसी in the view of the limited availability and nature of minerals. Mineral resources are finite and non-renewable. Mineral resources constitute raw materials for many basic industries. Mineral resources are major resources of national development, so we need to protect them. So there is a great economic importance of mineral resources, so we need to reserve them, preserve them and protect them. National Mineral Policy. In view of the above, National Mineral Policy has been adopted, which encompasses the various policy guidelines which have been issued from time to time. The policy also emphasizes certain new aspects and elements as under: mineral exploration in the seabed, development of proper inventory, proper linkage between exploitation of mineral and development of mineral industry, preference to members of the scheduled tribes for development of small deposits in scheduled areas, protection of forests, environment and ecology from the adverse effect of mining, enforcement of mining plan for adoption of proper mining methods, optimum utilization of minerals, export of minerals in value added forms and recycling of metallic scrap and mineral waste. Now the main mineral resources which are available in our country are: firstly the bauxite. Recoverable reserves of all grades of bauxite in the country are estimated at 283.3 crore tons. Important deposit occurs in Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala and Madhya Pradesh. And second important mineral resource is barite. The recoverable reserve of barites are placed at 7.1 crore tons, और मोस्टली जो है ये आपका मंगमपेट तालुका, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है इसका रिज़र्व. इसके अलावा ये राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है. इसके बाद आता है कोल एंड लिग्नाइट. ये कोल जो है इंडिया का लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, और 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया का वर्ल्ड में. वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल ऑन गोंडवाना फॉर्मेशन
जो कि वेस्ट बंगाल में है। देन उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इसका रिजर्व है। इट ऑल्सो अकर्स इन टर्शरी फॉर्मेशन इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड. Total reserve of coal are estimated at 17,046 crore tons, comprising the 16,499 crore ton of non-coking coal and 547 of the prime coking. Then chromite. Total recoverable reserve of chromite are estimated to be 5.4 crore tons. और मेनली ये आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाया जाता है. However, refractory grade reserves of chromite are very much. Then comes copper. कॉपर जो एक बहुत ही इसका जो मेजर और इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बिहार में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, झुंझुनू और राजस्थान में भी कॉपर पाया जाता है. इन एडिशन स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ओर कम्स फ्रॉम खम्मम डिस्ट्रिक्ट, चित्रदुर्ग, हसन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक एंड सिक्किम. कॉपर ओर reserves in the country are estimated at 63.2 crore tons with a metal content of about 82.8 lakh tons. Then comes diamond. Total reserves and resources in the country are placed at 10.8 carats. Main diamond bearing areas in India is Panna belt in Madhya Pradesh, Ramalakota and Bangampalle, Chitradurg rocks in Kurnool district and gravels of Krishan river basin in Andhra Pradesh. Presently the only diamond pipe under exploitation is at Panna. Then comes dolomite. डोलोमाइट का जो टोटल रिकवरेबल रिजर्व है वो है 46.08 लाख टन्स. और इसका जो प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. उसके बाद गोल्ड देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट गोल्ड फील्ड्स इन आवर कंट्री. कोलर डिस्ट्रिक्ट में है ये. हुट्टी गोल्ड है फील्ड जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में है. और तीसरा है रामागिरी गोल्ड जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है. Total in situ gold ore reserve and resources are estimated at 5 crore tons with a total gold content of 103.17 tons. Then comes fire clay. India has vast resource of fire clay with recoverable reserve of 70.3 tons. Fire clay इंडिया में mainly जो है वो कोल बेड से, गोंडवाना के जो कोल बेड्स हैं उससे एसोसिएटेड है और टर्शियराइट बेसिन से रिलेटेड है. मेजर फायर क्ले प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. फिर आता है फ्लोरस्पार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है. इसका टोटल रिकवरेबल रिजर्व है 18.8 लाख टन्स. जिप्सम का टोटल जो रिकवरेबल रिजर्व है इंडिया में 120 करोड़ टन्स है और 120 करोड़ एस्टिमेटेड है. रिकवरेबल 31.9 करोड़ है क्योंकि दिस इज द जिप्सम ओर दैट इज 120 करोड़ और इसमें से जो एक्सट्रैक्ट हो सकता है दैट इज 31.9 करोड़ टन्स. बल्क ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिनरल जिप्सम कम्स फ्रॉम राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात. ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल क्वांटिटीज. देन ग्रेफाइट का रिकवरेबल रिजर्व 46.5 लाख टन्स है. ओके, जिसमें से कि 31 लाख टन सिर्फ केरला में हो रहा है. देन बिहार और बाकी उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. लिमोनाइट मेनली जो है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट बीचेस के पे पाया जाता है. उन पे जो सैंड्स हैं वहाँ पर तमिलनाडु में पाया जाता है और टोटल 14.6 करोड़ है. देन आयरन ओर जो है इंडिया इज फेवरेबल एंड रोड विद आयरन ओर. सबसे ज़्यादा
मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल और आयरन है। इसका टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व है 1197.7 करोड़ टन्स, जिसमें से कि 10,267 जो है दैट इज हेमेटाइट, उसके 171 करोड़ मैग्नेटाइट है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, ये सबसे ज़्यादा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में है। लार्ज रिजर्व ऑफ मैग्नेटाइट ore occurs along the west coast, primarily in Karnataka, with minor occurrence in Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Then kaolin. India possesses vast resources of kaolin and ball clay, with kaolin resources being placed at 87.2 crore tons. Currently principal producing state kaolin के हैं बिहार, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद आता है लेड जिंक राजस्थान, मेघालय, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और सिक्किम में है। 95% नोन रिसोर्सेज जो हैं इसके वो साउथ सेंट्रल राजस्थान में लोकेटेड हैं। एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात में भी हैं। Total identified ores are placed at 38.3 crore tons, equivalent to an in situ metal content of 56 metal content of 56 lakh tons of lead and 1.83 crore tons of zinc. Then limestone occurs extensively in the country and is produced in almost all states, including मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एंड कर्नाटक। देन मैग्नीज भी इसमें रिकवरेबल जो मैग्नीज है दैट इज़ 15.4 करोड़। रिच डिपॉजिट्स मैग्नीज के आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में है। मेजर प्रोड्यूसर यही हैं उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। देन माइका, इंडिया इज़ वर्ल्ड्स leading producer of sheet mica and account about 60% of global mica trade. सबसे ज़्यादा इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है ये शीट माइका जो है। इकोनॉमिक डिपॉजिट जो है इसका 3 रिचेस्ट माइका बेल्ट्स में है। ओके, देन कम्स द निकल। लो ग्रेड लेटोराइटेड निकल अकर्स इन कटक, क्योंझर, Mayarbhani district of Odisha. Main occurrence in Sukinda belt of Cuttack district. Minor occurrences are also reported from Bihar, Manipur, Nagaland, Maharashtra, Karnataka and Rajasthan. Total nickel ore resources are estimated at 23.1 crore tons. Then phosphate जो है वो छतरपुर, सागर, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, देहरादून, टिहरी में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में भी इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं कमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए। और इसके अलावा रिकवरेबल रिजर्व जो है रॉक फॉस्फेट का 11.5 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में फॉस्फेट। देन टंगस्टन रिकवरेबल असेट करके 70 लाख टन है with W03 content of 7,860 tons. टंगस्टन्स और राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देन मैग्नेसाइट जो है इंडिया इज़ हैविंग लार्ज रिसोर्स ऑफ मैग्नेसाइट इंडिया में हमारे स्पेशली हमारे उत्तराखंड में काफ़ी होता है, पिथौरागढ़ में भी है। ओके, यहाँ पे फैक्ट्री भी है। प्रेजेंट चीफ सोर्स ऑफ मैग्नेसाइट आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सैलेम इन तमिलनाडु, अल्मोड़ा इन उत्तर प्रदेश। डिपॉजिट अब तो ये उत्तराखंड में आ गया अल्मोड़ा, पहले दैट टाइम इट यूज टू बी इन उत्तर प्रदेश। देन मैग्नेसाइट ऑल्सो कर इन चमोली एंड पिथौरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, मैसूर एंड हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक एंड इन जम्मू कश्मीर एंड केरला। कायनाइट एंड सिलेमाइट, ओके, तो ये भी हैं जो कि बिहार, भांद्र डिपॉजिट महाराष्ट्र में है। स्मॉल क्वांटिटीज प्रोड्यूस इन कर्नाटक एंड राजस्थान ऑल्सो। रिकवरेबल रिजर्व जो है इसका 54.3 लाख टन्स है। इसके अलावा इंडिया में बेंटोनाइट, कोरंडम, कैल्साइट, फुलर्स अर्थ,
फेल्सपर, गार्नेट और स्टीलेटाइट इनके भी रिजर्व्स हैं। तो नाउ द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड माइनिंग। तो इसको हम और डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।